Good morning, everyone. Good morning, student. Today, I am going to take a lecture on the topic that is volatile oil. These are also the secondary metabolites obtained from the plants. Now, what are volatile oil? Volatile oil are basically these are the orderless volatile principles of plant and animal sources are known as volatile oil. Means, as the name indicates, they are volatile principles of the plant and animal sources, and as well as they are orderless in nature without having any order. So basically, volatile oils are made up. They evaporate and exposed to air at ordinary temperature. They are also called ethereal oils. Means कि whenever they will come in exposed to ordinary temperature, कि room temperature पे भी आते हैं तो they get volatilize in nature, मतलब ये उड़ जाते हैं. That is why we have given them name volatile in nature. So that is why we have given the name volatile oil and also called as ethereal oil. क्योंकि जैसे ही एज द ईथर की तरह सेम वे वेन एवर दे कम्स एट रूम टेम्परेचर और एट नॉर्मल टेम्परेचर दे गेट इवेपोरेट, दे गेट वॉलेटिलाइज्ड. They represent the essence of active constituents of the plant and they are also known as essential oil. They are also called as essential oil because they represent the essence of active constituent. जो भी मेन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी ये दे प्रेजेंट एसेंस, उनकी एक एसेंशियल है जिनके कारण से उस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कह सकते हैं आप एक्टिविटी होती है. जैसे आप लाइक फैनल है, फैनल सौंफ यूज टू टेक आफ्टर डिनर लंच. वाई? because fennel used to contain volatile oil which are responsible for which helps in the digestion of the food. So the active essence, active constituents of that drug is volatile oil. दैट इज़ वाई मीन्स कि जो भी हमारी एक्टिविटी डाइजेशन की हो रही है फैनल की इज़ बिकॉज ऑफ दिस वॉलेटाइल ऑयल. तो वो एसेंशियल कंपोनेंट है उनके उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जिसके कारण से उसकी एक्टिविटी हो रही है, जिसके कारण से उसके यूजेस हैं. तो इसी कारण से इसलिए हमने इसको एसेंशियल ऑयल का नाम भी दिया बिकॉज दे आर द एसेंशियल कंपोनेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग एंड ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल और इथरल ऑयल बिकॉज दे गेट evaporate or they get volatilized when they exposed to the ordinary room temperature. Now they are made up of isoprene units that are basically monoterpene, sesquiterpene, diterpene. So they have the chemical nature of the volatile oil is that they are made up of isoprene unit which are further can be monoterpene, diterpene, sesquiterpene depending upon the how many number of carbon atoms are present in that chain. ठीक है. Now properties are कि volatile oil are soluble in alcohol, ठीक है, ether and other lipid solvent and practically insoluble in water. मतलब water में insoluble है, बाकी organic solvents में they are soluble. दे आर लाइटर देन द वाटर से भी लाइटर होते हैं. तो दैट इज़ वाई हम इनको जब कलेक्ट करते हैं तो ये पानी के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं वॉलेटाइल ऑयल की क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं होते. दे पोजेस करेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर. They are commonly found in the species of Labiaceae, Rutaceae, Piperaceae, Zingiberaceae, Umbelliferae, Myrtaceae and Lauraceae. Mean they are present in vast variety of families. In commonly basically उसमें Umbelliferae आती है, आपकी Rutaceae आती है, ये सब आती हैं जिन families में basically जो आपका volatile है वो oil वो large amount में present होता है. Next है how can we extract the volatile oil? There are extraction scheme which commonly comes for the volatile oil. First is hydrodistillation. Hydro means water, distillation assembly we can use. So using a water distillation assembly we can extract the volatile oil and that method is called as hydrodistillation method. So here water is used for the extraction of the volatile oil and the fresh petals are subjected to hydrodistillation. Air dried subterranean parts are extracted by steam distillation. लाइक जो फ्रेश पेटल्स वगैरह उनके लिए लीव्स हैं उनके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट द वॉलेटाइल ऑयल यूजिंग दी वाटर. बट कुछ एरियल पार्ट्स के लिए क्या होता है, कुछ पार्ट्स के लिए हमें क्या होता है, वी कैन यूज़ दी स्टीम डिस्टिलेशन ऑल्सो. ठीक है, जैसे आपके लीव्स वगैरह ये सब होते हैं. तो इन दिस मैथड सो वी कैन बाय यूजिंग दिस मैथड वी कैन एक्सट्रैक्ट द वॉलेटाइल ऑयल.
तो वाटर इसलिए यूज़ करते हैं एज उनकी प्रॉपर्टी है कि दे आर नॉट सोल्यूबल इन वॉलेटाइल ऑयल, जो नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दैट इज़ वाई हम वाटर इसलिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि दे यूज़ टू कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लेयर अबव द वाटर, बीइंग लाइटर इन नेचर, वाटर से लाइट होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं सोल्यूबल होने के बजाय उनके ऊपर एक लेयर बना देते हैं और बाद में हम इसको लेयर को वाटर से अलग सेपरेशन फनल्स के थ्रू भी हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है एनफ्लोरेज मेथड। एनफ्लोरेज मेथड इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द डेलिकेट परफ्यूम। ये जनरली हम फ्लावर पेटल्स जैसे रोज़ पेटल्स है उसका रोज़ ऑयल निकालना है, डेलिकेट हमें पार्ट से हमें ऑयल निकालना है, तो उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। फ्रेश फ्लावर पेटल्स आर मैकेनिकली स्प्रेड ऑन अ लेयर ऑफ फैटी मटीरियल विच इज़ देन अलाउड टू इम्बाइब एंड एग्जॉस्टेड पेटल आर देन रिप्लेस बाय दी फ्रेश पेटल्स। इसमें क्या करते हैं हमारे पास एक मतलब एक कंटेनर होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं एक फैटी लेयर लगा देते हैं। उस फैटी लेयर को के ऊपर हम वो हल्की सी हीटेड फैटी लेयर होती है, उसके ऊपर में ये पेटल जिसमें से हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है वॉलेटाइल ऑयल, उसको हम स्प्रेड कर देते हैं। काफ़ी घंटों के लिए स्प्रेड करते हैं। जैसे ही वो पेटल्स जो हैं वो आपकी फैटी लेयर के कांटेक्ट में आता है तो जो वॉलेटाइल है वो धीरे धीरे उस फैटी लेयर में एम्बाइब करता है, मीन्स रिसता है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो रिसेगा तो जो आपके पेटल्स होते हैं वो कलरलेस होना शुरू हो जाएंगे अगर मान लो है, और क्या कहते हैं एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। हमें और करना है तो हम एग्जॉस्टेड पेटल्स को रिमूव करके उसके ऊपर फ्रेश पेटल्स लगा देते हैं ताकि और एक्सट्रैक्शन हो जाए। एंड फाइनली देन हम उसको फैटी लेयर में से जो आपका ऑयल है उसको हम क्या करते हैं यूजिंग फर्दर सेपरेशन टेक्निक्स आर अवेलेबल, उनके थ्रू हम उसको वॉलेटाइल ऑयल को उस फैटी लेयर से सेपरेट आउट कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज देयर, फ्रैक्शनल सेपरेशन मैथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स आर ऑल्सो अवेलेबल जिसकी हम हेल्प से उसको फिर अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड एक्यूली मेथड। एक्यूली मेथड में क्या होता है, इसके अंदर इट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिट्रस ऑयल। सिट्रस ऑयल के लिए यूज़ होता है। ये सेम वे जैसे आप घरों में आपके पास लेमन को आप स्क्वीज़ करते हैं या इसमें क्या होता है हमारे पास इट्स लाइक ए कंटेनर जिसमें हम पॉइंटेड हमारे पास एजेस होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। उस पॉइंटेड पे लाइक अगर आपका सिट्रस ऑयल है वो जैसे सेम वे लेमन है या आपका ऑरेंज है, उसको हाफ काट के हम फिर देन क्या कहते हैं रोटेट करते हैं उन पॉइंटेड एजेस पे रोटेट करते हैं। हमारे पास लाइक जूसर्स होते हैं, ऐसे रोटेट करने से क्या होगा नीचे जो उनका सारा जो ऑयल जूस है वो नीचे आ जाता है। जूस आएगा इट मीन्स उसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल के कंपोनेंट्स भी आएंगे। तो सेम वे जैसे द वे यू यूज टू एक्सट्रैक्ट आउट द लेमन ऑयल, लेमन मतलब में से ऑरेंज में से आप निकालते हो किचन्स में, सेम वे दिस मेथड इज़ सेम। तो ये सिट्रस ऑयल के लिए यूज़ होता है। केमिकल टेस्ट में अब इसका वो कैसे क्या 2 टाइप्स के टेस्ट हैं, जैसे टू थिन लेयर और यहाँ सेक्शन ऑफ ड्रग एड अल्कोहलिक सॉल्यूशन सुडान रेड 3, द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय ग्लोबुलस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। मीन्स अगर आप सुडान रेड 3 डालते हैं आपके सैंपल के ऊपर और आपके पास रेड कलर आ जाता है देन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। सेकेंड वाले में है टू अगेन डू द थिन सेक्शन ऑफ ड्रग एट अ ड्रॉप ऑफ टिंक्चर एल्केन, अगेन रेड कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। सेम वे वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सैंपल पे अगेन आप क्या कहते हो टिंक्चर एल्केन की फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं, रेड कलर आता है देन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल।